Okay, welcome you all to the Happiness series and the segment H for Health. We have with us Anuradha Vashish ji. She is a researcher, writer, she's a farmer, nutritionist, she's an educationist, and a natural health consultant. She has over 16 years of experience as a journalist and a media professional. She gave up her responsibility as deputy editor Life Positive, a personal growth magazine, after she came in touch with Acharya S. Swaminathan, who taught her these natural health concepts. He encouraged her to start a non-profit organization, Ideal Health Foundation, to propagate the science of natural health and develop a health culture. Inspired by her spiritual gurus, she also founded Nivriti, another non-profit organization, which works for external transformation through internal transformation. She has showcased concept in Shraddha Suman, a role model of sustainability in Kangra district of Himachal Pradesh. She has left Delhi to permanently settle there and propagate her beliefs and value systems. Through her educational programs, she motivates people on the path to wholesome recovery from disease conditions without use of drugs, medications, therapies, and other means that can have harmful side effects. I too attended her one of the workshops in 2018 and really got an opportunity to understand her education, her teachings. And that changed my perspective completely about food, about health, and definitely about life. I got my perspective changed 360 degrees. So most welcome, Anuradha ji. I'm so happy to have you here and meeting you in not in person, online through this Zoom call. And I'm very happy to meet you again. Most welcome. Thank you, Renu. I was exactly thinking the same, that we last met, I think, a couple of years back offline, face to face. Yes. After that, first time we are coming face to face, though online. Online has become a norm these days. True. I'm really liking your background, and it's so wonderful seeing your Shraddha Suman. Is it? Yes. We are Yes, able to and see a view. today itself, I spotted an eagle here. And Okay. to spot an eagle is so rare, and that really made me so happy, because that means that your environment and your ecosystem is very healthy. You come across so many bees, butterflies, earthworms, a plenty, handful of them, all around, and so many different kinds of birds here. And we had this eagle perched on the top of one of our roofs in the morning, early morning, and it really sent a, you know, kind of a joy, अंदर से पूरा जैसे बॉडी में एक सिरहन उसको देख के, क्योंकि it was a long time जब से कोई ईगल या हॉक नहीं देखा था. Okay. And we tried clicking it, but वो थोड़ा सा, by the time it flew away. It's a true sense of sustainable concept that we are trying to create. That life, every life form has a right to live and live joyfully, and to give that kind of environment to all creatures that has been created. Okay. That need to be. What a wonderful thought. Yeah. So my basically aim of meeting you here is to have a whatever I've learned, I want you to convey or propagate to all my friends here. So I have few questions for you. So if we can go ahead. Yes. Go ahead. Yes, please go ahead. Yes. Okay. Yeah. During our workshop with you, I just got to know that disease, that is dis-ease in our body. And you have talked about medicine-free and drug-free life you propagating. So please throw some light उसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए कि how can we stay without medicines? Zarur. They are so part of it. Actually, first of all, yeah. See, first of all, I need to, every moment, every time, I must thank my Acharya, Acharya Seshadri Swaminathan ji, who introduced me to these concepts of health and life.
and I'm so eternally grateful to him, because life जिसको कहते हैं ना total बदल गई once when I met him more than 20 years back, and life became so comfortable. That time my children were very small, and frequent fevers, chota problems, going to the pediatricians, then reading out all the labels on the medicine bottles, and उसमें सब लिखा रहता था कि this is poison, not to be given without the prescription of a doctor. तो ये मन में आता था कि लिखा भी हुआ है और दे भी रहे हैं इतने छोटे बच्चे को, तो और भी even I had lot of medical issues when I was that age young. तो एक बार जब उनके सानिध्य में आए, मौका मिला, इतना 5 साल उनके चरणों में बैठ के ये पूरी शिक्षा ली, तो एक जैसे निडर सी लाइफ हो गई, टोटल फियरलेस लाइफ हो गई, कि एक कंफर्ट लेवल रहता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, द डीप फीलिंग दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड. तो व्हेन आई से सब ज्ञान उन्हीं का दिया है, उन्हीं का सिखाया है, जो भी मैं आज शेयर करती हूँ लोगों से. तो like he also used to say कि disease is nothing but dis-ease in the body. There is just a dis-ease in the body, and you remove that uneasiness from the body, you get your body at ease. There's no disease. Okay. So it's just a matter of removing the uneasiness or the discomfort in the body. तो इसमें medications का कोई रोल नहीं है. If when we are talking of health, अगर हमें सिर्फ एक स्वस्थ जिंदगी जीनी है हर तरीके से, फिजिकल हो या मेंटल हो, तो उसमें कोई भी दवाई का या किसी नुस्खे का या ट्रीटमेंट का, क्योर का कोई रोल ही नहीं है. सिंपल, आप स्वस्थ हैं तो कोई डिजीज नहीं है, कोई दवा नहीं है. अब स्वस्थ कैसे रहना है, बस वही हमें जानना है. हमें किसी डिजीज के बारे में कभी जानने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्वस्थ कैसे रहना है वो जानना है. It's as simple as कि we have nothing to do with darkness. You switch on the light and there is light. I mean, आप अंधेरे में खड़े रहोगे, हाथ पैर मारोगे, आप उसको पीटोगे, अंधेरा वहीं रहेगा, कुछ कहीं जाएगा नहीं. सेम विद द डिजीज. तो अगर आपका हेल्थ है, अगर हेल्थ रूपी आपने लैंप जलाया हुआ है अपनी लाइफ में, तो कभी अंधेरा आएगा ही नहीं, कभी डिजीज ही नहीं आएगी. तो डिजीज की बात ही नहीं करनी. Okay. That's what this is. Very simply explained, but I don't know, आजकल तो एक ट्रेंड है कि डॉक्टर्स के पास जाना है, मेडिसिन कुछ भी है तो विदाउट मेडिसिन कैसे, मतलब people are thinking कि ये तो लाइफ लॉन्ग खानी है. Because we have become medicine centric, disease centric. हम फोकस रखे हुए हैं बीमारी और दवाई पे, हम स्वास्थ्य पे फोकस नहीं है हमारा. The day we shift focus, देखो बड़ा सिंपल है, हम जो सीख करते हैं वही हमें मिलता है, जो हम ढूंढते हैं वही मिलता है, जो हम स्टडी करते हैं उसी का ज्ञान मिलता है. तो हमें दवाइयों का ज्यादा कि ये पैरासिटामोल है ये, क्योंकि उसके बारे में बात, स्वास्थ्य के बारे में रियल सेंस में बातचीत नहीं होती है घर में. एक बचपन से एक डर, बच्चों के भी दिमाग में एक डर बिठा दिया हमने, ये मत करो, यहाँ जर्म है, वायरस है, ये इन्फेक्शन हो जाएगा वो. तो एक फियरलेसली, एक हेल्दी कॉन्सेप्ट की, देखिए प्रकृति में कितनी जीवाणु, कीटाणु, जीव, प्राणी हैं, है ना. आई डोंट थिंक कि इंसान से ज्यादा डरा हुआ और कमजोर कोई भी होगा. वो फियरलेस लाइफ जीते हैं, नेचर के अंदर वो अपनी इंट्यूटिव लाइफ जीते, क्योंकि हम इंट्यूटिवली नहीं जी रहे ना, हम अपने इंस्टिंक्ट से नहीं जी रहे. और हम ये विश्वास खो चुके हैं कि जिसने हमें क्रिएट किया इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर, उसने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया. ऐसा कैसे हो सकता है? We are protected from within. We just have to realize it. Okay, great. Yeah, wonderful insight. And आपने food की भी बहुत बात करते हैं आप. You talk about food, what food we should eat, and how can we remain healthy. और आप pure और processed food का जो एक comparison है, आजकल बहुत लोग processed food की तरफ जा रहे हैं. छोटे छोटे टिप्स अगर आप हमें दे पाएं कि what is the best eating clean food, and how can we remain away from the adulteration and the packaged food we have these days, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा. देखो, पहली तो बात कि एडल्ट्रेटेड फूड तो हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा है, पैकेज फूड हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो हमें कोई वो अटैक नहीं कर रहा है, तो उनसे बचने की तो ऐसे जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि हम ही उसकी तरफ बढ़ रहे हैं.
तो अगर हम ना बढ़े उसकी तरफ तो वी आर नॉट बीइंग फोर्स्ड टू ईट ऑल दैट, है ना। और दूसरी बात कि अगर हम वाकई ही जीवन को अपने स्वास्थ्य को लेके, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, अगर हम वाकई संजीदा हैं, अगर हम बहुत सीरियस हैं, हम वाकई एक हेल्थ सीकर हैं, तो हम लाइफ को कंप्लीट सेंस में जिएंगे, एक होलसम लाइफ जिएंगे। तो इसमें टिप्स का स्कोप नहीं है। अगर आप मेरे को ये कहें, सी आई हैव अ वेरी रैडिकल फिलॉसफी एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट व्हाटएवर आई डू। तो इसमें टिप्स नहीं है कि आप 1 to 10 ये चीजें कर लीजिए और आप हेल्दी रहेंगे। इट्स हेल्थ इज अ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपको बस हेल्दी लाइफ जीना है। इसमें ये नहीं है कि आप अगर ये कर लोगे, आप सुबह उठ के अगर गर्म पानी नींबू के साथ पी लोगे या आप 2 गिलास आंवला जूस पी लोगे, है ना, तो ऐसा नहीं है। इट्स अ होल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उसको डीपली अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और फूड का जहां तक सवाल आता है, आई थिंक शायद ये चीज किसी हद तक क्लियर कर देगी मैं क्या कह रही हूँ, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो फूड को लेके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत जिसको कहते हैं वॉप्ड हो गए हैं। कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी भी जीव को ले लीजिए संसार में, सबका अपना एक नेचुरल फूड है, ठीक है। जो कार्निवोर्स हैं वो अपना अपना फूड खाते हैं, अगर वो पेट्स ना है। अगर आप पेट्स हैं तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं है, तो आप उनको डॉग फूड भी देंगे, कैट फूड भी देंगे, अननेचुरल फूड देंगे एक्चुअली जो उनका नेचुरल फूड नहीं है। तो पहली तो बात हम ये क्लियर हो जाए कि फूड वही है जो नेचुरल है। दैट इज द ओनली फूड। एंड व्हेन यू से प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, अडल्ट्रेटेड, तो वो फूड ही नहीं है, क्योंकि फूड वो है जो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर को क्लीन रखे, हेल्दी रखे और रिप्लेनिश कर सके। जो हमारे सेल्स और टिश्यूज को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से दे सके और हमें हेल्दी रख सके। और इसमें लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर वो न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि हाई न्यूट्रिशन, है ना। फूड इनटेक की बात सारे करते हैं, आउटपुट की बात कोई नहीं करता। इन द सेंस कि हेल्दी रहने का जो फर्स्ट सीक्रेट है वो है द बॉडी मैकेनिज्म शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन, शुड बी मच मोर क्लीन देन व्हाट वी थिंक कि हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग्स का जो हाइजीन कंडीशन है। अब देखिए पिछले 1.5 साल में हमने क्लेanलीनेस की कितनी बात सुनी है, हाथ साफ रखो, है ना, बार बार धो, ये करो, है ना। लेकिन कभी किसी ने आज तक अंदर अपनी सफाई रखनी है इसकी बात नहीं। तो वो फूड जो हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन दे और वो फूड जो हमारा अंदर क्लीन रखे, मतलब कि जो देखिए बाहर तो हम अब झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, मॉप्स यूज कर लेते हैं, अंदर तो हम कोई मॉप यूज नहीं करते ना, जो हमारी अंदर की सफाई। so there is a mechanism in nature, there is a mechanism there, जैसे कि पूरा संसार एक हेल्थ कॉन्सेप्ट्स के साथ चलता है, लॉज के साथ, अंडर लॉज चलता है, कुछ कानून है, कुछ सिद्धांत है। तो हेल्थ भी जो हमारी है वो एक लॉज के अंदर चलती है, जो देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। अगर हम उनको ना समझें और उनके हिसाब से ना चलें तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है, फिर बॉडी डिस ईज में रहेगी। तो कंफर्ट में तब आएगी जब हम उन लॉज, नेचुरल लॉज ऑफ हेल्थ को फॉलो करेंगे, है ना। तो उसमें क्या आता है कि फूड, अब जैसे बाकी प्राणियों का, जीवों का अपना फूड है, इंसान का भी अपना फूड है। और वो फूड क्या है, ये कॉमन सेंस और लॉजिकल अप्रोच अगर हम रखें तो वही है जिसके लिए हमें दांत, हाथ, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। हम हाथ बढ़ा के फ्रूट प्लक कर सकते हैं, हम कोई भी रॉ वेजिटेबल्स, कोई भी हर्ब्स को प्लक कर सकते हैं और हम मुंह में डाल के चबा के उनको खा सकते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जिसके लिए बना है वो ही हमारा फूड है। ओके, सो अब मैं क्या ही बोलूं कि हम आज जो भी खा रहे हैं वो फूड को छोड़ के सब खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। मतलब 80 to 90% हमें जो लेना चाहिए वो होना चाहिए फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स, वेरी लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स जिनको हार्डली कोई कुकिंग की जरूरत हो, हर्ब्स जितने भी ग्रीन्स हैं,
तो ओके, कुछ किसी मात्रा में नट्स जिनकी डाइजेशन अच्छी है ना, तो नेचुरल, सीजनल, सात्विक, तो यही हमारा भोजन होना चाहिए। अब अगर 80 to 90% हमारा वो इनटेक है जो कि भोजन है ही नहीं हमारे लिए, उसको हम भोजन की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते, तो ये तो मैं चैलेंज करती हूँ किसी को भी कि कोई भी मुझे ये बताए कि इसमें कोई न्यूट्रिशन है। जो प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड है या जो इतने हाई टेम्परेचर्स के ऊपर तला हुआ फूड है, उसमें तो कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। कुकर के अंदर जब हम बना रहे हैं तो वो तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगर मैं ये दावा करती हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो आज अभी ये सुन भी रहा है मेरी बात, अगर वो अपना 80% फूड जो है वो रॉ पे ले आएगा, फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ले आएगा, सैलेड्स पे ले आएगा, और जो 3 बार अन्न खा रहा है उसको खाना बंद कर दे, क्योंकि हमें लगता है कि दाल रोटी ही फूड है। फ्रूट इज अ फुल मील। यू टेक, आप 2 नारंगी, 2 माल्टा, 3 माल्टा खा लीजिए, इट विल सेटिस्फाई योर हंगर, इट इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल हंगर, है ना। तो एक्चुअली हम फिजियोलॉजिकल हंगर के हिसाब से नहीं खाते, हम साइकोलॉजिकल हंगर के हिसाब से खाते। तो हमारा माइंड हंगर करता है, यू नो, डिजायर करता है ऐसी चीजें जिससे हमारे सिर्फ जीभ को स्वाद आता है, वो नहीं डिजायर करता क्योंकि अगेन, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग गलत होगी। अब बचपन में बच्चों को पहले तो सिर्फ माँ के दूध पे होना चाहिए, उसके बाद उनको हमें उनके हाथ में गाजर दें, खीरा दें, है ना, हम उनको सैरेलैक देते हैं, पैकेज फूड शुरू कर देते हैं, फिर उनके हाथ में 2-2 साल के बच्चों को, 6-6 महीने के बच्चों को मैंने देखा कोका कोला की बोतल दे देते हैं, मतलब एनी सॉफ्ट ड्रिंक। सी बेसिकली हमने अपनी लाइफ को बड़ा, मदर्स ने कंफर्टेबल और इजी कर दिया कि बच्चों को ये कुछ करना नहीं है, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करना, सुपर बिजी हो गए हम लोग। बहुत केयर तो है, बच्चों के लिए कंसर्न तो है, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट नहीं कर पा रहे। तो ट्रेनिंग भी गलत हो गया, तो बड़े होते हैं हम यही सोच के कि दाल रोटी सब्जी ये खाना है, हाँ, कि ये हमारा खाना है, विच इज एक्चुअली नॉट आवर प्राइमरी फूड। Okay, got it very much in detail and thank you for this. And आप सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात करते हैं, एंड आप सस्टेनेबल मॉडल के बारे में प्लीज हमें बताइए, एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट बेटर हाउ वी कैन अप्लाई दैट इन आवर लाइफ इफ वी वांट टू। देखो, बहुत फर्क है एक विलेज लाइफ में और अर्बन लाइफ में, काफी डिफरेंस होता है, लेकिन काफी चीजें हैं जो हम कॉन्शियसली कर सकते हैं शहरों में रहकर। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो हम कर सकते हैं वो हम इकट्ठे होके एक एडवोकेसी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जो बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि हम लोग कॉन्शियस तो हैं, पता है हमें कि जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम मंडियों से आता है, वो प्योर नहीं है, नेचुरल नहीं है ना, कंटेमिनेटेड है, बहुत एडल्ट्रेटेड है, सॉइल में कितना केमिकल डाला हुआ, लेकिन हम जैसे बहुत हेल्पलेस से फील करते हैं कि हम क्या करें। तो सबसे पहले तो यहीं से ही, फूड की बात से ही सस्टेनेबिलिटी की बात आती है कि जो भोजन एक सिक सॉइल से आएगा, कंटामिनेटेड सॉइल से आएगा, जो पोल्यूटेड है, हेवीली पोल्यूटेड है, फिर जिसके ऊपर इतने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं, जब हम उसको लेते हैं तो वो हमें ना तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा, ना हमारी ब्लड स्ट्रीम को एल्कलाइन रख पाएगा, और ना ही हमारे वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ देगा। तो हमारा धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम वीकन होगा और हम जो भी हमारा एलिमिनेटरी प्रोसेस है वो वीकन होगा। तो मैं तो एक बेसिक से अभी जो कोर इश्यूज हैं डेप्थ वाले, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही बेसिक और जो ग्रॉस लेवल पे सबको दिख रहा है कि ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ तो जिंदा रहने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप देखो ना, मेरे पास 8 साल की एज के, 6 साल की एज के ब्रेन ट्यूमर्स के बच्चों के केस अगर आते हैं, है ना, इतने सारे, मतलब मेरे को दिन में एक दो कैंसर के इंक्वायरीज आती हैं। अगर इतना कैंसर फैल रहा है तो सबसे पहले तो ये हमारा सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी की तो हम बाद में बात करें, हमारा सर्वाइवल ही आज मुश्किल हो गया। छोटे छोटे बच्चों का किडनी फेलियर्स, है ना,
यंग गर्ल्स को इन देयर टीन्स, मतलब अभी वो कॉलेज में ही हैं और उनको पीसीओडीज प्रॉब्लम्स बहुत केसेस आते हैं। तो ये तो सर्वाइवल का इशू है। अब सस्टेनेबिलिटी का इशू जो है वो क्या है कि ज्यादातर अभी पीछे वी कंडक्टेड यू नो 1 वीक प्रोग्राम विद मैक्स मुलर, यहाँ से हमने किया था, और उन्होंने पैन एशियन स्टूडेंट्स के साथ 1 वीक का सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी। इट वाज वेरी ब्यूटीफुली रन प्रोग्राम एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो उसमें मुझे 5 दिन का एक वर्कशॉप कंडक्ट करना था, जिसमें मेरे यहाँ जो श्रद्धा सुमन के आर्किटेक्ट हैं मिस्टर संजय गुप्ता, वो भी इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की बात की। जैसे यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो सस्टेनेबल है इन द सेंस कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है। यहाँ पे हम कभी भी हमें एसीज नहीं लगाने, इस तरीके से कि उनका जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल लेवल मेंटेन रहे। मतलब हमें भी अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ाना है कि थोड़ी सी भी गर्मी में, है ना। तो दोनों, तो सस्टेनेबिलिटी इज अबाउट यू नो यू हैव टू इंक्रीज लॉट ऑफ योर थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट, जहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान की बात है ना। और हमारा जो सबको पता है कि फ्यूल कंजम्पशंस कहाँ चले गए। जितना ज्यादा हम अननेचुरल फूड खाएंगे, जितना ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड खरीदेंगे मार्केट से, उतना वो बनेगा, उतना ही ज्यादा वो एनवायरनमेंट के लिए डेट्रीमेंटल होगा, उतना ही ज्यादा। तो मतलब देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटी, जितनी ज्यादा हम एक्टिविटीज करते हैं, उतना ही ज्यादा हम अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। जितना ही हम इसीलिए जैसे मेडिटेशंस हैं या जो भी एक पीसफुल एक्टिविटीज हैं जितनी, वो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं। कि जितनी हमारी डिजायर्स हैं, जितना हम ज्यादा भागते हैं किसी चीज के पीछे, क्योंकि देयर इज नो एंड टू इट। आप एक चीज को फुलफिल कर दोगे आप, तो ये वो चीजें हैं जो हमें यू नो अब छोटी सी बात है कि पहले हमारे, आई डोंट नो इन योर टाइम, लाइक हमारे जमाने में छोटी छोटी कैंडीज हुआ करती थी, जो टॉफीज होती थी। ओके, अब आज मार्केट में एनी नंबर ऑफ यू नो काइंड ऑफ कैंडीज है ना। अब वो नई नई लॉन्च करनी पड़ती है। क्यों? एक बोर्डम हो गया ना, क्योंकि मेंटल एक स्थिरता नहीं है, एक बैलेंस नहीं है, एक ठहराव नहीं है हमारी लाइफ में, एक उत्तेजना नहीं है, एक एक्साइटमेंट। तो बोर्डम क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन वही चल रहा है। तो वो कंपनी रीपैकेज कर देगी वही चीज को, है वही इंग्रेडिएंट्स, वही थोड़ा सा टेस्ट इधर उधर हो गया। समझ गए। ये भी आप मोबाइल्स को देख लीजिए, हर चीज को देख लीजिए कि हर 6 महीने में बदलना है, हर 2 साल में बदलना है ना। तो हम वेट ही नहीं करते हैं कि यू नो लाइफ अपने आप, जब आपको किसी चीज की, हम देखिए नीड और वांट्स का जो गैप है ना, वो गड़बड़ा गया है। हम मतलब अगर हम अपनी नीड तक सीमित रहते हैं तो हम सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। अगर हम अपनी वांट्स के पीछे भागेंगे तो देयर इज नो एंड टू इट। तो हमें पहले बैठ के सबको प्रायोरिटाइज करना है कि क्या मैं इसके बिना चला सकता हूँ, क्या मैं इसके बिना चला सकता हूँ। तो और यहाँ पे तो यही है कि यू विल बी सरप्राइज्ड रेनू कि इस जगह में यू नो से दिल्ली के अंदर अगर आपको एक बंगलो को मेंटेन करना हो तो आई थिंक 1.5 लाख कम होगा विद अ फैमिली। ओके, एंड I am still a little away from generating that kind of income for this place. That is because it's a huge area and it has taken time to build it anyway. But 10 families besides the cows and the calves that I have, two indigenous cows and 2 calves, and you know they are being sustained in this amount. They are all living a good life within this amount. Good. all everything met इस जगह के। इट्स मतलब क्योंकि नेचर काम कर रही है ना सारा टाइम, हर चीज वी आर फ्लोइंग विद नेचर, राइट। सो आई थिंक मेंटल पीस, आई थिंक वो मेंटल पीस अलग फीलिंग होगी, वो अलग साथ में है। दैट्स अ हम कहीं कुछ बोनस।
वो तो है ही है, जितना भी लूटो। मुझे यहाँ तो से देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो हाँ, आप तो वहाँ पे हो इस समय। I feel sustainability for me is just being with the rhythms of nature, and that's it. जहाँ पे आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप सस्टेनेबल फिलॉसफी से दूर जा रहे हो। सस्टेनेबिलिटी is such a wonderful insight, and thank you so much Anuradha ji for taking out time, and मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अट्रैक्शन आ रही है। I'll be reaching Kangra will very love this soon. place. I Anyone am will going love to this come. place. And it is open for people. Okay. Anyone can come, अभी थोड़ा सा रहने का थोड़ा इशू है यहाँ पे, बट वो भी धीरे धीरे हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, definitely. Thank you so much. Thank you so much, and thank you so much for your time, and God bless you for all the learning. Giving me this opportunity that I would reach out to some people, maybe somewhere, it rings a bell. You never know. Yes. Okay, Renu. Thank you. Thank you so much. Thank you.